آپ دیکھ رہے ہیں ABTV اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج کی جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی جو بریت کا فیصلہ، اس کا آج تحریری فیصلہ جو ایک کاپی ہے وہ آ چکی ہے، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، وہ 31 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر جو چند اہم یعنی کہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں، جن میں 66 گواہ، جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ 66 گواہ تھے اس کے اندر، اور دوسرا جو اہم بات ہے وہ کچھ جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو گواہان ہیں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں ان کو ایف آئی اے نے کس انداز سے ریجیکٹ کیا، اور خود ہی ایف آئی اے یعنی کہ شہباز شریف کو بیسیکلی بچانے میں ایف آئی اے خود ہی شہباز کی وکیل بن گئی، اور اس کو خود ہی انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ کون سا یعنی گواہ ٹھیک بول رہا ہے، کون سا غلط بول رہا ہے، بغیر تفتیش کے۔ عدالت نے یہ بتایا، آج جو فیصلہ آیا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک جو تفتیشی ادارہ ہے وہ خود ہی کسی چیز کو ملزم ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا، تو عدالت کیسے کسی آدمی کو ملزم ڈکلیئر کر سکتی ہے؟ جب ایک تفتیشی ادارہ تفتیش یہ مکمل کر کے عدالت کے سامنے ثبوت ہی نہ پیش کرے، تو عدالت کس بنیاد پہ، کس یعنی کہ پوائنٹ پہ، کس ایجنڈے کے تحت یعنی کہ ایک ملزم کو یعنی کہ سزا دے سکتی ہے؟ تو اب اس کے اندر جو چند ایک پوائنٹ ہے جو بڑے یعنی کہ جو ایک یعنی کہ اس کیس کو جاندار بناتے تھے، لیکن ایف آئی اے نے اس کو کس انداز سے گھمایا، اور کس انداز سے یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر، جو بہت ہی امپورٹنٹ کیس تھا، اور اس کے اندر ان کو یعنی کہ یہ کنفرم وکٹم یعنی کہ یہ ملزم ڈکلیئر ہوتے تھے، لیکن کیونکہ تفتیشی اداروں نے ان کو بچانے کے لیے سردار کی بازی لگائی، اور انہوں نے پورا ایک پلان اور ایک پورا جو ایک سینیریو کریٹ کیا جس کے تھرو ان کو یعنی کہ ریلیف ملا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گواہان تھے، جو چند ایک گواہان تھے، انہوں نے کیا یعنی آپ نے بیانات ریکارڈ کروائے تھے۔ انہوں نے ان میں سے ایک جو تفتیشی تھا، اس نے یہ تفتیشی افسر نے یہ کہا ہے کہ جو گواہ ہے اسلم زیب بٹ، اس نے یہ کہا ہے کہ جو یعنی کہ سلمان شہباز کے کہنے پہ میں نے یعنی پارٹی کا جو اکاؤنٹ تھا اس کے اندر ایک دفعہ 2.5 لاکھ روپے سبمٹ کروائے، اور اس کے بعد پھر سلمان شہباز کے کہنے پہ 10 لاکھ روپے میں نے سبمٹ کروائے۔ اسی طرح ایک اور جو گواہ تھا جس کا نام مسرور انور، ایک اور ملزم یعنی مسرور انور، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ جو شہباز شریف کا کیش بوائے یعنی اس کا جو پرسنل یعنی کہ فنانس سیکٹری تھا، اس کے کہنے پہ اس کا جو اکاؤنٹ تھا، اس کا نام تھا جو کیش بوائے ہے گلزار احمد، وہ یہ مسرور انور یہ کہتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نے 4 بار ٹرانزیکشن کی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں 4 بار ٹرانزیکشن کی ہیں، لیکن چونکہ تفتیشی پروسیکیوشن نے اس کے شواہد ہی جمع نہیں کروائے، اس کے اوپر تحقیق کرنا ہی یعنی گوارا نہیں سمجھا کہ یہ جو بیان دے رہا ہے اس کو کم از کم تفتیش ہی کر لیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، انہوں نے تفتیش ہی نہیں کی، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اسی طرح جو ملزم نے یعنی کہ توقیر ہے، گواہ ایک اور محمد توقیر ہے، اس نے یہ کہا کہ جو میرا اکاؤنٹ تھا، جو وہ شریف کمپنی کے جو سی ایف او یعنی چیف فائنانس آفیسر جو ہیں، ان کی جو یعنی جس کا نام ہے محمد عثمان، اس کے کہنے پہ میرا یہ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جب یہ والی ساری، اسی طرح جو مقصود چپراسی ہے جو مشہور یعنی کہ نیم ہے، اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ شوگر مل کے جو جنرل مینیجر ہیں عشرت جمیل، وہ آپریٹ کرتے تھے، یعنی کہ مقصود چپراسی کا جو اکاؤنٹ تھا وہ شوگر مل کے جو چیف یعنی کہ جنرل مینیجر تھے عشرت عباد، وہ آپریٹ کرتے تھے۔ یعنی اس بیچارے کو، چپراسی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ایک جو مطلب کہ اکاؤنٹس کا جو تفصیل ہے جو اس کو آپریٹ کرنے کا، میرے خیال میں ایک عام آدمی کو، ان پڑھ آدمی کو یعنی کہ اس انداز سے بینک جو ٹرانزیکشن ہے اس انداز سے اس کو، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ چند سال قبل کی بات ہے، آج سے یعنی 5 سے 10 سال یعنی کہ یہ چند سال قبل کی بات ہے۔ اب جب ایک آدمی کو 5-10 سال قبل کی جو بات ہے اس وقت اتنا یعنی کہ جو بینک ٹرانزیکشن ہے وہ اس انداز سے عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتی تھی، اور یہ بیچارے مقصود چپراسی یعنی کہ اب یہ چپراسی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا تھا کہ کس انداز سے یعنی کہ ٹرانزیکشن کرنی ہے، کس انداز سے اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اس کو کس انداز سے چلانا پڑتا ہے، اور اس کو کس انداز سے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، یہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ والی ساری چیزیں آئیں تو اس کے بعد یعنی کہ ایک ملزم نے جب یہ کہا، یعنی کہ جو یہ اوپر میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلم زیب بٹ،
जब इसने ये सारा बताया तो उसको यानी कि FIA ने खुद ही उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया और उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। मजे की बात ये वो पॉइंट हैं जिनकी बुनियाद पे यानी कि ये मुल्जिम यानी कि जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है, ये आज यानी कि अपने आप को बाइज्जत और सादिक अमीन का जो सर्टिफिकेट लेके फिरे हैं, उसके अंदर यानी किस अंदाज से तफ्तीश के अंदर यानी FIA ने किस तरह से सहूलतकारी का किरदार अदा किया, ये आप खुद जान लो। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये अदालत का आज जो तफसीली फैसला आया उसके अंदर ये बरमला लिखा हुआ है कि यानी कि जब एक तफ्तीशी इदारे ने ही इसके अंदर यानी कि मुल्जिम को यानी उसके खिलाफ जो सबूत थे उसको इकट्ठा करने में किरदार ही अदा नहीं किया, सबूत ही पेश नहीं किए, तो हम कैसे किसी को मतलब कि यानी सजा दें, किसको किस अंदाज से किसी को मतलब मुल्जिम डिक्लेयर करें, किस अंदाज से एक यानी कि आदमी को मुजरिम डिक्लेयर करें और किस अंदाज से किसी को मतलब कि बदनाम करें, उसकी यानी कि इज्जत उछालें, उसको यानी बदनाम करने की कोशिश करें। यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि किस अंदाज से इनको सहूलतकारी मुयसर की गई। और एंड पे जो एक और इस फैसले के अंदर जो पॉइंट लिखा गया है वो ये बताया गया कि जो इनके बेनामी अकाउंट्स थे तमाम के तमाम, जितने भी ये ट्रांजैक्शनें होती थी, वो यानी कि जो उस कंपनी के कम तनख्वाहदार यानी कि लोग होते थे, जैसे ये मकसूद चपरासी बेचारे, इस टाइप के जो आम यानी वर्कर होते थे, स्वीपर होते थे, इस टाइप के जो यानी छोटे मुलाजिम होते थे, जो अनपढ़ होते थे, वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, जिनको बैंक ट्रांजैक्शन का उस अंदाज से इल्म नहीं होता था, बैंक अकाउंट्स के यानी कि उसके खदोखाल का उनको पता नहीं होता था, बैंक यानी कि डिटेल का SOPs का उनको पता नहीं होता था, उनके नाम पे यानी कि ये अकाउंट खुलवाए गए। और एक यानी कि जो अकाउंट है उसके अंदर ये भी बताया गया कि इस अकाउंट जो इनके थे बेनामी अकाउंट्स, उनके अंदर से ना सिर्फ यानी कि ये कंपनी और इस तरह के मुलाजमीन यूज हुए, बल्कि सियासतदान भी इसके अंदर यूज हुए, कॉन्ट्रैक्टर भी यूज हुए। और वो जो एक सियासतदान है उसने बल्कि 14 मिलियन रुपए उस यानी बेनामी अकाउंट्स के अंदर जमा भी करवाए, किस लिए? पार्टी टिकट हासिल करने के लिए। लेकिन FIA ने उसके ऊपर भी तफ्तीश नहीं की और उस यानी कि आज अदालत ने जब अपना फैसला दिया, उन्होंने ये बताया कि FIA ने उस सियासतदान का नाम भी नहीं बताया कि वो सियासतदान कौन था और किस कॉन्ट्रैक्टर ने कितने यानी कि उस बैंक यानी बेनामी अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन की हैं वो कितनी की हैं और किस यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने की हैं, और ना ही उसका नाम बताया, ना पॉलिटिशियन का नाम बताया। ये इनका तफ्तीश थी। और फिर तो मुल्जिम ने बरी होना ही था ना, जब इस अंदाज की तफ्तीश होगी तो फिर मुल्जिम ने बरी होना था ना, फिर उसको सरकार के पारी लगने थे ना, वो फिर सादिक अमीन ही डिक्लेयर होना था ना। अब ये हमजा, बल्कि हमजा ने इस दौरान एक और जो पॉइंट है वो ये है कि हमजा ने इस दौरान ये एडमिट किया कि वो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर हैं, ये हमजा ने इतराफ़ किया। लेकिन जब तफसील की बात आई तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई तफसील यानी है ही नहीं, बैंक अकाउंट्स की तफसील है ही नहीं। और वो सारी वो सलमान शहबाज जो कि आज भी लंदन में मौजूद है, वो यानी कि सारे मामला को वो देखेगा और वो ही इसको डील करता है और वो ही सारा ये बताएगा ये पूरे मामला क्या हैं। हत्या कि जो केस था वो 25 अरब रुपए का था, लेकिन चूंकि चलान के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया गया और वो भी FIA ने फिर उसको साबित करने में नाकाम रही। तो यूं यानी कि हमजा शहबाज और सलमा यानी कि शहबाज शरीफ इस केस के अंदर बरी हो गए। इस केस के अंदर इस अंदाज से वो अपने आप को सारे कौमीन का उनको टिकट मिला, ये इनका अंदाज था। अब सवाल ये है, अब इनका जो किरदार है, और ये अपने आप को फिर कहते हैं दुनिया तो इतनी यानी कि वो नहीं है बेवकूफ़ के इनके यानी कि इस अंदाज की तफ्तीश। और बल्कि ये भी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिस अंदाज से नैब तरामीम की गई हैं और जो सबूत का पॉइंट है, बारे सबूत, वो हमेशा दुनिया की किसी भी अदालत के अंदर वो हमेशा मुल्जिम के ऊपर होता है, ना कि तफ्तीशी इदारों के ऊपर होता है कि वो यानी कि बारे सबूत पेश करें। लेकिन इन्होंने कानूनी अब यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इस केस के अंदर इसके 66 यानी गवाह थे। इन्होंने जो नैब तरामीम की है उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि 100 गवाह होंगे तो वो नैब जो यानी कि केस है वो यानी कि काबिल कबूल होगा। यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इनकी पूरी जो तरामीम है वो किस अंदाज से इन्होंने घुमाई है, किस अंदाज से अपने आप को बरी करने के लिए और सहूलतकारी हासिल करने के लिए बारे सबूत भी तफ्तीशी इदारों पर डाल दिए, गवाह भी 100 होने चाहिए। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इनके 66 थे, लिहाजा अब गवाह 100 कर दो। जब 100 गवाह होंगे ही नहीं तो ये ऑटोमेटिकली केस यूं भी यानी कि बरी हो जाएंगे। यानी इस अंदाज से इन्होंने पूरी जो नैब यानी तरामीम है वो अपने आपने जो केसेस थे, चाहे वो जरदारी साहब के थे, चाहे वो शहबाज या शरीफ फैमिली के थे,
इन्होंने उस अंदाज से तरमीम की जिस अंदाज से हम लोग यानी बरी हो सके, बाइज्जत, यानी कि बाइज्जत अपने आप को फिर कहेंगे। ये इनका किरदार था। और ये जो मरियम नवाज साहिबा कहती है, मेरा सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा खुद कहती है कि मेरी पाकिस्तान छोड़ो, लंदन छोड़ो, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनसे ये मेरा सवाल है कि आप खुद कहती हो कि मैं वाले साहब की ज़ेर कफालत हूँ, और बिल फर्ज ना भी हो तो जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो एक कैप्टन रिटायर्ड है, उनकी जो तनख्वाह है एक कैप्टन की कितनी होती है? और वो हैं भी रिटायर्ड, ये नहीं कि ऑन यानी कि जॉब है, एक रिटायर्ड यानी कि मुलाजिम है, तो उसकी तनख्वाह यानी पेंशन कितनी होगी? और उसके अंदर किस अंदाज से गुजारा होता है, ये आज पूरा पाकिस्तान को पता है जो महंगाई के हालात है। लेकिन ये मोहतरमा जिस अंदाज से इसका लाइफ स्टाइल है, ये अभी लंदन गई है, तो इसका मैं आपको एक दिन का जो इसने ड्रेस पहना हुआ था जो यहाँ से गई है, तो मैं सिर्फ उसकी आपको तफसील बता देता हूँ। वो कम अज कम 600 यानी कि 6 लाख रुपए का कम अज कम वो पूरा सिनेरियो बनता है। 6 से 7 लाख रुपए का जो इन्होंने पूरा अपना यानी कि कैरी किया हुआ था ड्रेस। अब उसके अंदर जो बैग की कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो तकरीबन पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए बनती है जो इन्होंने अपने साथ बैग कैरी किया हुआ था। और इसी तरह जो इन्होंने शॉल ली हुई थी यानी चादर, वो तकरीबन 2.25 लाख रुपए की थी। ये शॉल की बात कर रहा हूँ, चादर की। और इसी तरह जो इन्होंने यानी कि शूज़ पहना हुआ था वो तकरीबन 2.25 लाख का था, तकरीबन 2.25 लाख रुपए का शूज़ था। ये आपको मैंने 3 पॉइंट बताए। अब पूरा जो यानी कि इनके कपड़े और पूरी ड्रेस को अगर मिलाया जाए तो ये कम से कम 5 से 6 लाख 7 के राउंड अबाउट जाके बनते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसकी यानी कि इसके पास इसकी कंपनी क्या है, आज तक नहीं पता, बकौल इसके कि मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है ना। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके पास जायदाद नहीं है तो आपका ये लाइफ स्टाइल कैसे गुजर रहा है? आप यहाँ से अचानक यानी लंदन का तो एक साइड का जो टिकट है वो कम से कम, सिर्फ टिकट बता रहा हूँ, ये कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का टिकट है एक साइड का। और ये अचानक माशाल्लाह इनके टिकट लग जाते हैं, तो ये किधर से पैसा आता है? ये बता देना। अगर आप ईमानदार हो तो कौम को बताओ ना, कौम के नुमाइंदे हो तो बताओ कि मेरी ये जायदादें हैं, ये बताओ ना उसको कि किधर से ये पैसा आ रहा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप यानी कि आपने आज तक कौन सी यानी कि कारोबार किया, या कौन सी एक मतलब कि फर्म चलाई, या कहाँ पे आपने जॉब की, क्या किया आपने? तो ये पैसा फिर किधर से आ रहा है? और फिर कहती हो कि मैंने करप्शन भी नहीं की, मैं वो पाक साफ है, हम लोग बड़ी ईमानदारी से हमने ये कमाया, सब कुछ किया। तो ये बता दो ना ये पैसा किधर से आ रहा है, ये किधर से आप कैरी कर रही हो, ये किधर से इतने जो लाइफ स्टाइल है आपका शहाना, ये प्रोटोकॉल, ये वीआईपी लाइफ जो है ये कैसे मेंटेन होती है, ये काम आदमी को भी बता दो। इसीलिए फिर दुनिया आपको इस अंदाज से देखती है कि अमेरिका के कल जो तर्जमान हैं यानी कि फॉरेन ऑफिस के, वो ये बता रहे थे कि हमने जो सैलाब जदगान को एड दी है, जो इमदाद दी है, वो हम खुद देख रहे हैं। वो हुकूमत को इस अंदाज से यानी कि खर्च करने की इजाज़त नहीं दे रहे, वो हम खुद खर्च कर रहे हैं। हमारा जो यूएस एड का यहाँ पे यानी कि कमीशन बना हुआ है वो इसको यानी कि मेंटेन कर रहा है, वो लोगों तक पहुँचा रहा है। और इस हुकूमत के ऊपर यानी उस एड के ऊपर हम गहरी नज़र रखे हुए हैं ताकि उसके अंदर करप्शन ना हो। और यहाँ से एक और बात कल, बल्कि एक और उन्होंने जब ये जो फॉरेन ऑफिस के तर्जमान है अमेरिकन, उसने कल एक बात यानी कन्विक्ट की है कि इस वक्त जो हुकूमत का जो यानी तब्दीली आई है वो जमहूरी अंदाज से आई है। जो सिविलियन हुकूमत यानी कि मुसल्लत यानी कि मुंतखब हुई है वो यानी कि जमहूरी अंदाज से। अब सवाल ये है मोहतरम साहब कि अब आपने इतराफ़ कर ही लिया है तो खुल के बोले ना कि आपने किस अंदाज से यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जमहूरी स्टाइल है। क्या ये जो लोगों को यानी कि जिस अंदाज से पूरी दुनिया ने देखा कि जिस अंदाज से उसको यानी सिंध हाउस के अंदर लोग पीटीआई के एमएनए को ठहराया गया, उनको वहाँ क्या मिलाद मनाने के लिए ठहराया गया, क्या उनको वहाँ यानी कि दीन की तबलीग के लिए बुलाया गया, या उनको यानी कि वो किस अंदाज के, उनको किस लिहाज से रखा गया, उनको किस यानी कि फार्म में रखा गया, उनको क्यों रखा गया? सवाल ये है ना। बाकी एमएनए को क्यों नहीं रखा, उन लोगों को वहां ने क्यों रखा? तो आप खुल के बोलो ना कि ये रजीम चेंज किया है। अब मैं आपको रजीम चेंज की मिसाल दे देता हूँ कि ये लोग किस अंदाज से करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1971 के अंदर वजीर आजम थी इंदिरा गांधी, ये आपने नाम सुना होगा इंडिया का, ये उनकी खातून यानी कि वजीर आजम थी। इसके खिलाफ जब अमेरिका ने साजिश की तो इसके खिलाफ जो इन्होंने यानी कि वो लेटर जो भेजा था, जो इन्होंने उस लेटर के अंदर एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर को एक अमेरिकन क्या कह के यानी कि मुखातिब करके बुला रहे थे, उसके अंदर भी 2 लोग मुलव्वस थे। अब उनमें से 2 लोग यानी जो मुलव्वस थे जिन्होंने ये लेटर क्रिएट किया था, उनके जो फॉरेन ऑफिस यानी कि सेक्रेटरी थे, उनका जो ये दो उन्होंने जो लेटर यानी जारी किया था और उन्होंने जो ज़बान यूज़ की थी, उन्होंने यानी कि
वजीर आजम इंदिरा गांधी को कुतिया कह के बुलाया था, कुतिया कह के मुखातिब किया था, ये उनकी जुबान थी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि किस अंदाज से इमरान खान के खिलाफ इन्होंने यानी जो जुबान जो लेटर आया था, जो कि दो दफ़ा सिक्योरिटी यानी कि जो यानी मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी की, जिसमें यानी कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह साहब और ये बाकी वजीर आजम और वफाकी कैबिनेट जो वहाँ मौजूद थे, वो चाहे वो इमरान खान के अंदर हो या शहबाज शरीफ के अंदर हो, दोनों के अंदर ये एडमिट किया था कि ब्लेंटेंट यानी कि इंटरफेयर हुआ है, गैर कानूनी ज़ुबान यानी कि अनएक्सेप्टेबल ज़ुबान यूज़ हुई है, और इस अंदाज के जो पूरा यानी खद्दो खाल है वो ये बयान की गई। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा, जब एक यानी फिर दूसरी मीटिंग के अंदर तो उसका क्या नाम है यानी कि असद मजीद, उसको भी बल्कि बुलाया गया था, तो उसने भी मतलब कि वो सारी बात की थी, और जो उसने लेटर है उसके एंड पे उसने कहा था डिमाश का। अब डिमाश उस सूरत में किया जाता है जब रेड लाइन क्रॉस होती है। तो यहाँ से आप लगा लो अंदाज़ा कि किस अंदाज का वो लेटर था और किस अंदाज का उसके अंदर यानी कि वो सारा यानी कि जुबान इस्तेमाल की गई इमरान खान के खिलाफ, जो इमरान खान आपने जलसों में कहता है कि घटिया तरीन जो जुबान इस्तेमाल की गई। और उसने बल्कि CNN को गालबन एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस आदमी को तो फिलफौर बरतरफ ही डोनाल्ड ट्रंप को इस बेस पे कर देना चाहिए कि इसको सफारती लैंग्वेज ही नहीं आती, इसको पता ही नहीं कि मैंने अल्फाज क्या चुनाव करना है, इसको पता ही नहीं गए घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो ये आपको मैं बताने लगा था कि ये इस अंदाज से इन्होंने किया, जो कि कल अब आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, और इंशाल्लाह एक दिन ये पूरा जो ये पिंजरा है ना ये खुलेगा, और इसके अंदर जो पिंडोरा बॉक्स है ये दुनिया देखेगी कि किस अंदाज से इन्होंने साजिश की और किस अंदाज से इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान के अंदर, ये एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। तो आखिर में मैं आपको इंशाल्लाह कल की जो व्लॉग होगा उसके अंदर बताऊंगा कि इस वक्त लंदन प्लान क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं अलीम खान और ओन चौधरी की नवाज शरीफ से, उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है और उनका प्लान क्या और एजेंडा क्या है, ये मैं आपको कल वाली वीडियो अगले व्लॉग के अंदर जो मेरा आएगा उसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी तफसील भी बताऊँगा। आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो के आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।